I welcome you all today to the podcast we are running for Jaju International School. Today, as an esteemed guest, we have with us Dr. Gaurav Mishra Sir, Professor in Radio Diagnosis, Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha. He is a renowned radiologist and a Pro Vice Chancellor of the Tamegi Institute of Higher Education and Research. Welcome, sir. We welcome you to Jaju International School. Today, as we invited you to discuss on the topic about how to raise emotionally intelligent children in the 21st century. So, as a Director Principal to Jaju International School and Jaju Group of Schools, I would like to place certain questions which our parents have addressed and our students would also like to know more about on this. So today from our channel we are going live, and the first question that I want to state with you is, many students find it hard to share their problems with their parents. Why does this communication gap happen? I will repeat, many students find it hard to share their problems with their parents these days. Right. So the question somehow points towards the level of comfort in between the child and the parent. I think that during the formative years or during the initial years of the child, when the parent rears the child, when the parents make the child grow into a particular individual, there are certain values which need to be instilled. There is a certain level of comfort, there is a certain level of ambience, there is a certain level of openness which is needed in between the child and the parent, so that the child should not feel threatened, or the child should not feel uncomfortable, or he should not feel out of place while he or she discusses something very personal with his parents or her parents. Because this level of comfort is, I think, the main factor which decides the level of detail which decides the communication in between the child and the parent. Because the more comfortable, the more at ease the child or the parent is with the child, now I am reframing my sentence, the parent should be open enough, he should be or she should be kind enough, he or she should be, inducing a kind of comfort inside the mind of the child, so that he or she opens up unfretfully. Or I'll say, he or she does not feel out of the comfort zone, that, oh, I'm going to share this with my parents, I'm going to share that with my parents. He or she should feel relieved, he or she should feel lighter after he or she shares his or her thoughts with their parents. Because parents are supposed to be buffers, they are supposed to be those people who absorb the things or the factors which cause discomfort to their students. They are meant for that, because पेरेंट्स ही लाए हैं बच्चों को इस दुनिया में. Me as a parent I have brought my child to life, and it is my responsibility that she grows into a responsible adult individual. And when I'm talking about responsible adult individual, she should understand that किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है. And when it is with the पेरेंट्स से हमेशा बिना फिल्टर के बात की जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. क्योंकि अगर उसको फिल्टर्स की इंपॉर्टेंस कोई समझाएगा तो ये पेरेंट्स ही समझाएंगे, उसको दुनिया वाले फिल्टर्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझा सकते. बिकॉज पेरेंट्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू यू. पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे का भला चाहते हैं. तो अल्टीमेटली जब बच्चा अपने पेरेंट्स से ही डरेगा कि इनसे मैं इस तरह से बात करूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो दिस समहाउ रिफ्लेक्ट्स दैट लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट इन बिटवीन हाउ द parents are communicating with their child and vice versa. कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कई बार जब हम एज बच्चे जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स जजमेंटल हो जाते हैं, दे कम टू कंक्लूजन्स फास्ट, दे लेबल द चिल्ड्रन कि आपकी सोच ऐसी क्यों है. तो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं ये गैप हमारे नज़र में आ रही है, ऐसा कहना. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. क्या है कि ह्यूमन साइक की अगर बात करें तो टेकिंग अ डिसीजन और टेकिंग अ बाइनरी डिसीजन फॉर दैट मैटर, डिसीजन वेयर द आंसर इज ईदर यस और नो, इट्स वेरी इजी. ऐसा है कि आपने डिसीजन ले लिया तो यू फील रिलीव्ड, एंड
देखिए, एक ट्यूमर का जो सेल रहता है ना, कैंसर का सेल, वो भी जो सेलुलर लेवल पे भी वहां से वो इन्वेट करता है जहां पे रेजिस्टेंस लीस्ट है, जिसको कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। बीइंग अ रेडियोलॉजी आई कैन टॉक अबाउट दैट। नाउ दिस सेम थिंग अप्लाइज टू द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड में भले ही हम हमारे बच्चों की बात करें या किसी और सिनेरियो की बात करें, वी वांट एन इजी सोल्यूशन, वी वांट एन इजी कंक्लूजन, वी वांट एन इजी जजमेंट। अब हमारे सामने हमारा बच्चा कुछ अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम इस तरह से दिमाग लगाएंगे कि उस चीज को सॉल्व कैसे करना है। लेबलिंग इट इज वेरी सिंपल। इफ यू डू नॉट वांट टू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू इंटेंड टू लेबल इट कि अरे बेटा ये तो ऐसा हो गया, ये तो ऐसा मत कर, ऐसा हो गया वैसा मत कर। बट दैट चाइल्ड डज नॉट वांट द लेबलिंग, ही वांट्स अ सॉल्यूशन, ही वांट्स एन इंटीमेट सॉल्यूशन फ्रॉम एन इंटीमेट पर्सन लाइक अ पेरेंट। उस बच्चे को अगर ये फील होता है कि मेरी प्रॉब्लम मेरे मम्मी पापा से बोल के एड्रेस नहीं हो रही है, he will not share anything with you ever again, or she will not share anything that personal with you ever again. ठीक है, अगर मेरे मम्मी पापा को इस लेवल तक ही शेयर करना है, मैं इसी लेवल तक शेयर करूंगा, इसके बाद मैं शेयर नहीं करूंगा। उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने मम्मी से अपने पापा से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा या रखेगी कि मुझे इस लेवल का सोल्यूशन मेरे मम्मी पापा नहीं देंगे तो कौन देगा? भगवान तो आके नहीं देंगे, भगवान तो दूसरे रूप में। बिल्कुल। हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो they have lot many things to speak. No, they'll full time they'll do chatter in front of the parents की, you know, आज ये हुआ, स्कूल में ये हुआ, आज हमने ये किया. Slowly and gradually when they grow up, when they come into their teens, तो ये बातें बढ़नी चाहिए क्योंकि उनका सर्कल बढ़ रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है। बट देखा जाता है कि इसका एकदम विपरीत होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कुछ होता है बात करने के लिए, जैसे हम बड़े होते हैं ये टॉपिक्स कम होते जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हमको ये सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है दैट वी बिकम अनकंडीशनल लिसनर्स टू आवर है ना चिल्ड्रन, ऐसा मुझे लगता है। और ये प्रैक्टिस आप कब कैसे सजेस्ट करेंगे गौरव सर कि कब से ये प्रैक्टिस हमने शुरू करनी चाहिए एज पेरेंट्स? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि as soon as the child learns to speak, which is लड़कियां जल्दी बोलना सीखती हैं, लड़के थोड़ा लेट बोलना सीखते हैं, बायोलॉजिकली जस्टिफाइड है। बट जैसे कि आपने कहा कि दे हैव अ लॉट टू एक्सप्रेस, दे हैव अ लॉट टू टेल, दे हैव अ लॉट टू टॉक, जिसको हम चैटर बोलते हैं। बट वो पहले तो चैटर ही होता है क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द जार्गन ऑफ द वर्ल्ड, एंड एज दे कम टू नो अबाउट द जार्गन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको मैं कहता हूँ वेब ऑफ वर्ड्स, वेब ऑफ वर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं various feelings also get inscribed on that. एंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि people feel that when they speak they are not taken seriously, or when they express something they are just scoffed off. When they speak about something personal, जितना अटेंशन उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं they feel that हमको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा मैडम इम्पोर्टेंस की अपेक्षा इंसान कहाँ से करेगा? अपने पेरेंट्स से करेगा। ठीक है, दुनिया वाले अदर देन आवर पेरेंट्स, इवन मैं अपने रिलेटिव्स अदर देन आवर पेरेंट्स की बात करूंगा, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूंगा। ग्रैंड पेरेंट्स तो दे आर ऑलवेज देयर फॉर द चाइल्ड, बट दे आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफ, दे विल ऑलवेज बी पैसिव, they will not be limiting the child at that level जितना मम्मी पापा लिमिट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जनरेशन पाल ली, उन्होंने अपना धर्म निभा लिया। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उसको ये चीजें फैक्टर्स धीरे धीरे समझ में आते हैं, उससे वो एक फिनोमेना में चला जाता है जिसको कहते हैं इमोशनल जैकेटिंग। इमोशनल जैकेटिंग में ये होता है कि अगर मैं ये इमोशन एक्सप्रेस करता हूँ या करती हूँ, मुझे इसमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? अगर मुझे इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल बी सिलेक्टिवली और प्रेफरेंशियली एक्सप्रेसिंग दैट इमोशन इन पर्टिकुलर। अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे इससे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या मेरा मजाक उड़ेगा इसमें या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो जनरली वो चीज़ वो विथहोल्ड कर जाता है बच्चा। बट ये जो इमोशनल जैकेटिंग है ये दुनिया वालों के साथ ठीक है, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। द वर्ल्ड वोंट अंडरस्टैंड यू, बट आपके पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड करते हैं, करना चाहिए, करते थे। और ये जो हम ब्रिज की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ब्रिज बनना चाहिए, ब्रिज तो ऑलरेडी है, क्योंकि वो प्लेसेंटा जो आपके मम्मी के पेट के अंदर आपको फीड कर रही थी वो कट भी गई है, लेकिन अभी भी मम्मी पापा से आपका वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हमेशा है, कार्मिक कनेक्शन हमेशा है।
And if they have a responsibility towards you, you also have a responsibility towards them. Very well said. जब ये कार्मिक कनेक्शन लोग समझेंगे, तब बच्चों को भी एक मैम झिझक इसलिए होती है, कई बार पेरेंट्स उनको उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस. उनका भले इंटेंशन नहीं रहता, द पेरेंट्स हैव द बेस्ट इंटेंशन टुवर्ड देयर चाइल्ड और चिल्ड्रन, लेकिन पेरेंट्स शायद इतने बिजी रहते हैं अपने काम के दबाव में, ऐसे स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं. इसलिए मैंने कहा मैडम कि पेरेंट्स का स्ट्रेस बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं. तो भले कितना ही हो जाए, हमें अपने बच्चों के सामने एक लेवल तक बनावटी रहना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट देम टू बी मॉडल पीपल. तो हमको उनके सामने मॉडल बन के रहना पड़ेगा. और अगर उस दौरान हम उनको उनकी इमोशंस को अगर हम वेंट आउट करने से कहीं पे भी अनइंटेंशनली भी रोकते हैं, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रिज है इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए बाय टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स. जैसे आपने चैटर कहा, तो हमको जैसे जैसे बच्चे बड़े भी होते हैं उनको हमको इंस्पायर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि बेटा एट द डिनर टेबल यू स्पीक योर हार्ट आउट, nobody will judge you. So like Because- if we speak, Yeah, they will also speak. yeah, we'll also speak. I mean, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलेंगे, बिल्कुल. शायद किसी हाँ पे या ना पे हम दोनों आके मिल जाए. Thank you so much. It was very nicely explained, sir. सर आजकल के दौर में जैसे मेरा जितना भी जर्नी रहा है, मैंने ये देखा है कि these days children overthink a lot. जैसे ओवरथिंकिंग है, सडन मूड चेंजेस है, उसके बाद अपने एंगर को कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो दे कम एंड जनरली आस्क फॉर सम काउंसलिंग टिप्स कि मैम हाउ डू आई डू दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट दे अंडरस्टैंड दैट यू नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, व्हाट आर देयर गोल्स, बट देन डिस्ट्रैक्शंस हैपन टू देम. कई बार वो इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम नहीं कर पाते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं. दे डोंट नो whom to go to, where to approach and how to get the right content to solve this problem. तो उसमें आप बच्चों के लिए क्या एड्रेस करना चाहते हैं? This is exactly what happens when the bridge which we talked about is not properly constructed. या वो कच्चा रह गया कहीं ना कहीं, क्योंकि मैम बच्चा तभी बॉडी का फील करेगा अपनी इमोशंस को लेकर जब उसको कोई आउटलेट नहीं मिलेगी. अगर उसको अपने पेरेंट्स के रूप में, मम्मी या पापा के रूप में कहीं पे भी अगर आउटलेट मिलती है, तो मैम वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना कहीं ना कहीं हैंडल करना सीख जाएगा. क्योंकि इमोशंस का मैम ऐसा है कि दे नीड टू बी वेंटेड आउट रेगुलरली. अगर कोई नहीं मिलता है बच्चे को, तो ही और शी शुड ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द मिरर. दिस इज अ थिंग व्हिच आई डू. I don't know if people in my family know, but this is my way out of my thoughtful times. But I was blessed with a very loving mother, a very loving father. My father was very busy in his academic work, but my mother was always there in my formative years. And when I grew up, when I took admission in MBBS and all, my mother said कि बेटा you have grown into a very elegant individual, and my father took on from there. So my life was evenly distributed in between my mama and father. So मेरा बोलना ये है कि बच्चे अपने इमोशंस तब हैंडल करना सीखेंगे जब उनको प्रॉपर आउटलेट मिलेगी. बिकॉज इमोशंस नीड टू बी हैंडल्ड रादर देन कंट्रोल्ड. आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते. यू नीड टू वेंट देम आउट, यू नीड टू चैनलाइज देम. अब जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में या तो वो दीवार पे हाथ मार दे, या तो अपने हाथ को एंजॉय कर ले, या तो उस इंटेंशन को, जो भी उस तरीके का उसको फीलिंग आ रहा है इंटेंशन, उसको लिख के निकाल देगा. कुछ नहीं, आपने लिखना है जिसके बारे में जो गुस्सा आ रहा है, जो इमोशंस आ रहे हैं, लर्न टू राइट देम. उस पेपर का कुछ नहीं करना, फिर चुड़ी मुड़ी करके जला के फेंक देना. कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, बस वो आपके मन से बाहर निकलना चाहिए. सो दिस इज अ वे आउट इफ यू डू नॉट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू. अगर आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, इफ यू फील दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू, सबसे बड़ा इंसान तो हमारे साथ खुद है. वी आर द वंस हु विल बी विद आवरसेल्व्स टिल आवर डाइंग ब्रेथ. डिस्कस विद दैट पर्सन. मम्मी पापा हैं, बहुत अच्छी बात है. दादा दादी हैं, बहुत अच्छी बात है. नाना नानी हैं, बहुत अच्छी बात है. बट द बेस्ट पर्सन इज सेल्फ. सो अगर कोई बात नहीं बन रही तो खुद से बात करो, खुद के साथ खुद रहने की आदत डालो. ये लास्ट टिप है, बट सबसे पावरफुल टिप है. Sure, sir. इसमें बच्चे कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी चीज़ों को शेयर करते हैं जो उनके हम उम्र होते हैं. जी.
और उनके साइड से जो भी सजेशन आता है या जो भी फीडबैक्स आते हैं वो उनको ट्राई एंड एरर करके देखना चाहते हैं। तो एज पेरेंट्स हमने उनकी इस जर्नी को, इस लर्निंग जर्नी को गवर्न करना किस हद तक सही है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि इंसान गलती करके सीखता है, गिर के उठता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हम सुन ही रहे हैं, है ना। तो जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम उनको बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एक नटशेल में रखना चाहते हैं, डू एज डायरेक्टेड फॉर्म में रखना चाहते हैं। वी डोंट allow them to make mistakes, commit mistakes. So how far, to what extent do you think कि पेरेंट्स ने इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा माइंडफुली करना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? मैम बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अब्दुल कलाम साहब तो मतलब ही रोट इन हिज बुक दैट द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो फेलियर इज नॉट अ बिग डील, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे सुनने में कई बार आता है कि बच्चे एग्जाम के पीछे इतने डेडिकेटेडली उसमें मेहनत करते हैं, बेचारों का एक्सपेक्टेशंस का लोड होता है, टॉप करना। कोई टॉप नहीं कर पाता तो they perform something unspeakable like that. See, जैसे कि मैंने ट्यूमर के सेल की बात किया, the path of least resistance. Path of least resistance ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को खत्म कर लो, but this is not acceptable. आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपने आप को खत्म करके सारी चीज़ों से निजात पालोगे तो दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज अगर आप लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव रखते हो तो योर कर्मा विल हॉन्ट यू इवन आफ्टर यू टेक योर लाइफ अवे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लाइफ में चीज़ों से डट के लड़ना सीखो, और लड़ोगे तो घाव लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं हो सकती, मिस्टेक होती है, मिस्टेक को हैंडल करना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। इफ दे कमिट अ मिस्टेक वी मस्ट नॉट से अरे बेटा ये क्या कर दिया, उनको बोलना चाहिए कोई बात नहीं बेटा, तूने इस बार क्या गलत किया तू ये सोच, इंट्रोस्पेक्ट, रिव्यू व्हाट यू हैव डन and point out that one or two small things which you kind of forgot, which you did not do or which you did wrong. And then the next time you do the same thing, be mindful of what you're doing and try to inculcate what you missed out before, and then you do it again. The results will be better. So our fear of comparison is what makes us, terrified about the world's perception about us. We are competing not with ourselves, but with the world around us. The world around us is not constant. We are constant. हमारी जब तक दौड़ हमारे से रहेगी, लाइक कल मैंने क्या किया, आज मैं वही चीज में उससे ज्यादा बेहतरी से कर रहा हूँ, if I'm doing something better than what I was doing yesterday, then that's a win-win situation for me. If we want our children to be strong mentally and be able to accept their mistakes head on, that is one of the best merits of good parenting which I consider, because हमको बच्चों में ये inculcate करना है कि बेटा गलती होती है, गलती करने से दुनिया खत्म नहीं होती, गलती होती है, गलती से आपको वही चीज नए सिरे से चालू करने की इंस्पिरेशन मिलती है, मौका मिलता है। If you did something wrong one time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, the 6th time you do, it will be better than all the times which you did before. How you did it before? It will be a very good and improved version of your own style, of your own protocol. And maybe वो चीज जैसे आपको करनी सिखाई है, हो सकता है कि इस दौरान जब आप वो चीज को परफेक्ट कर रहे हो, आप उस चीज को इतना परफेक्ट कर लो कि वो चीज को करने का तरीका ही बदल जाए। ऐसे ही चीजें कॉपीराइट होती हैं, ऐसी चीजें पेटेंट होती हैं, ऐसी चीजें पब्लिश होती हैं, और ऐसी रिसर्च होती है। खैर मैं रिसर्च में चला गया, बट मेरा बोलना ये है कि मिस्टेक्स होना, फेलियर होना, इसके ऊपर टैग नहीं लगना चाहिए कि ये तो फेलियर है, ये तो मिस्टेक है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर। यू शुड इंस्टिल द क्वालिटी इन योर चाइल्ड दैट बेटा आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, अब आप उसको जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो और बेटर करोगे, और देयर इज एवरी टाइम देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। क्योंकि मैडम सैल्वाडोर डाली ने भी बात करी कि आप परफेक्शन कभी पा ही नहीं सकते, देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन, यू कैन नॉट अचीव इट। So the more you do something, the more chances are that you will be successful in it. Confucius ने मैम स्टोइक किताब में एक बात बोली थी कि success is a matter of repetition.
success is a matter of perfection and perfection is a matter of repetition. The more you do something, the more the possibility is that you develop that thing as your second skin or second nature. So it is all about repetition and repetition के ऊपर कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, भले ही वो एकेडमिक ईयर की बात हो या छोटी सी कॉम्पिटेंसी की बात हो. ये फियर हमको एज अ पेरेंट हमारे बच्चों के मन से निकालना है. इट इज अ FOMO, फियर ऑफ मूविंग आउट, कि सारे बच्चे हमसे आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे. लेकिन जब तुम गति पकड़ोगे तो तुम्हारी दुनिया उनसे आगे होगी और वो तुम्हारे पीछे होगी. तो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू इंस्टिल कि इन सब चीजों के बाद भी हम पॉजिटिवली कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं. वी शुड बी न्यूट्रल अबाउट इट, बट न्यूट्रल टू द एक्सटेंट दैट वी हैव टू डू बेटर इट इन द नेक्स्ट टाइम वी डू इट. तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में वो चीज पॉजिटिवली इंस्टिल की जानी चाहिए rather than tagging them as a failure. So हमने दो key takeaways अभी दो questions से लिए. First is parent needs to be good listeners. Yeah. And second is that they need to be more patient, more understanding, that they tell their children, they make them understand it's okay to fail, right? Absolutely. Right, sir. Thank you. Thank you. These days, students depend too much on packaged food, packed food items, because बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है. So they are watching all these things, you know, in terms of their nutrition. अगर मैं बात करूँ कि हम लोग क्या देख रहे हैं, what kinds of advertisements and you know whatever exposure is coming on media. तो बच्चों को लगता है कि यही सब चीजें सही है because their favorite heroes, favorite superheroes are marketing all those products. But they are actually confused that are the superheroes actually consuming those products? So this is something which needs to be addressed in this generation, as well as some nutrition tips to the parents, like what kind of food could be consumed. Sure. Because that is this related to mental health somewhere, what kind of food? Deeply. Okay, so please. Because ma'am, एक मेरे ख्याल से वेदांत दर्शन करके एक बुक है, पौराणिक कथा किताब है, उसमें भी लिखा है, आचार्य विनोबा भावे ने अपने लेखों में इसको कहा है. मेरे ख्याल से संत दास जी ने भी इस बारे में कहा है कि आपकी सोच वो है जो आपका आहार है. उन्होंने इस चीज को कहा है कि अगर आप जीव खाते हैं तो आपकी सोच में एग्रेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि आप किसी जीव को खा के उसकी नेगेटिव ऊर्जा अपने अंदर, नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं, और जो आप खा रहे हैं वही आपका मस्तिष्क आपकी बॉडी से पोषण ले रहा है. तो इसीलिए जिसको कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक हो गया, मेथी हो गई, सैलड हो गया हमारा, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी वेजिटेबल्स हम लोग हमारे बचपन से हमारे मम्मी पापा को खिलाते थे, दाल हो गई, पल्सेस हो गई. मैं तो अंडा भी खाता हूँ, बट अंडा भी आजकल वेजिटेरियन में आता नहीं है, जस्ट फॉर इट्स प्रोटीन कंटेंट आई ईट एग येलो. मेरा कहना ये है कि देखिए, जहाँ तक चीज़ों को बेचने की बात है तो इट्स अ वेल नोन ब्रांडिंग टैक्टिक कि यार अगर ब्रांडिंग है, सेलिंग उसकी होनी है, तो हमको फेस वैल्यू हमारी बड़ी रखनी पड़ेगी. सादे सी वो भुजिया की एड में बड़े स्टार्स आते हैं कि भैया डैश लव्स डैश, तो अरे वो भी ये खाते हैं, हम भी ये खाएंगे. अब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या कोई नहीं देखता. यही चीज कोल्ड ड्रिंक्स के साथ है, यही चीज सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ है, यही चीज वो सारी शुगरी चीजों के साथ है जिसमें प्रोसेस्ड कंटेंट्स डलते हैं. मैम एक चीज मैं आपने मुझसे पूछी कि क्या आहार आपका दिमाग डिसाइड करता है? बिल्कुल करता है. मैंने आपको बोला भी ये चीज लिखी हुई है, बड़े बड़े किताबों में लिखी हुई है. अगर आप सोचिए कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो आपके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है. अगर आप प्रोसेस चीज खाएंगे, वो चीज जो नेचुरल नहीं है, जो आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड है, तो ऐसी चीज अंदर जाके उसी तरह का इफेक्ट देगी. इट विल नॉट हैव इट्स प्रॉपर इफेक्ट. जितना जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप रोटी से खा रहे हैं, गेहूं वाले कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो उनका अलग इफेक्ट आएगा. जवार से ले रहे हैं तो उनका इफेक्ट अलग आएगा. हर एक सब्सटेंस की अपनी एक, जिसको कहते हैं ना मैडम, जैसे फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वैसे हर एक फूड का अपना एक वैल्यू होता है. नॉट रिलेटेड टू SHC, बट एक अपनी वैल्यू होती है, उसका GI अलग होता है, जिसको कहते हैं ग्लूटेन इंडेक्स. और ये सारी चीजें जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती हैं फूड की, जितना वो प्रोसेस होता है उतनी शून्य हो जाती है.
तो आप ऐसा फूड्स अगर देते हैं अपने बच्चों को जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ सतही तौर पे टीवी पे दिखाई जा रही है और असल में जीरो है, तो मैम वी आर नॉट डूइंग एनी गुड टू आवर चिल्ड्रन। अगर हम उनको पौष्टिक आहार खिलाना चाहते हैं तो वी शुड आई मीन गिव देम और ट्रीट देम विद all organic foods, untreated foods, unprocessed foods, which will be easy on the pocket and easy on the body also. क्योंकि कोई भी प्रोसेस चीज को प्रोसेस जितना किया जाता है उतना ही बेचारी बॉडी एक्सर्ट करती है उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में। तो वो जबान पे अच्छा लगेगा पर बॉडी को तकलीफ होगी उसको प्रोसेस करने में, और वो आपको डिसीज अलग दे देगा बाद में। बट बच्चे को ये चीज कैसे समझाई जाए, क्योंकि पूरा ऑल ओवर मार्केट कहीं पे भी बच्चा बाहर जाए तो हर जगह यही चीज देख रहा है अपने आसपास। सो हाउ डू वी ब्रिंग दैट टू हिज नॉलेज एट दैट अर्ली एज कि ये उसके लिए ठीक नहीं है? मैम ये मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट द प्रॉपर पर्सन टू आंसर दिस, बट जैसे मीडिया इज क्रिएटिंग दिस हाइप, उसी तरह से मैं नाम नहीं लूंगा, इंस्टाग्राम के कुछ चैनल्स हैं, दे आर into foods and research and agriculture and all, and मैं brands का भी नाम नहीं लेना चाहता, but these people are trying to make people aware about the actual nutritive values। जैसे कि आपने अपने स्कूल में यहाँ पे बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अमित सर थे शायद, शुगर बोर्ड का कंसेप्ट था जिसमें बच्चों को पता चलना चाहिए कि आप फ्रूटी पी रहे हो तो उसमें कितना शुगर है, आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो उसमें कितना शुगर है। शुगर इज समथिंग व्हिच आवर बॉडी डज नॉट नीड। मैंने आपसे तभी भी कहा था मैम, शुगर इज द न्यू कोकेन। जस्ट बिकॉज आपको टंग में टेस्ट का परसेप्शन अच्छा मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा खा लो। शुगर की आपकी बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं। शुगर इज जस्ट फॉर टेस्ट। आपको मीठा लगे, आप ऑब्वियसली मीठा किसको पसंद नहीं, एवरीबॉडी हैज अ स्वीट टूथ, बट वो स्वीट टूथ को टूथ के जितना ही लिया जाए तो अच्छा है, ज्यादा ना लिया जाए। और जहां तक मैम अवेयरनेस की बात है तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। हमारा मीडिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा नहीं क्योंकि वो उसी चीज पे बिकता है। हमको उसके लिए काउंटर कुछ ऐसा सोचना चाहिए, जैसे कि आपने शुगर बोर्ड का कांसेप्ट लाया, इट वाज अ वेरी आई कांसेप्ट, CBSE initiative. दैट्स ग्रेट मैम, एंड दिस नीड्स टू बी डन। such similar things need to be done about the junk food also which we ingest nowadays। कोई पिज्जा खा रहा है, कोई वो चिकन विंग्स खा रहा है, वी डू नॉट नो दैट कितना प्रोसेस्ड होता है। ये सब टंग पे अच्छा लगता है, टेस्ट में अच्छा लगता है, इसलिए पीपल ईट इट, पीपल कंज्यूम इट। तो इट इज गुड फॉर द पीपल हु सेल इट but not good for the people who consume it. So it's a hard learned truth. It happens, sir. I agree to this point because we have a cafeteria in our school, as you know that it's a day boarding school. So when children have food in our school, they are eating it fresh, hot, right? So the meals, and I have seen children having everything starting from pumpkin to long beans to all kinds of lentils. Wow. So I am very proud that we have inculcated this habit of eating, home fresh cooked food. So Very nice. this is an initiative that I think we should do this very often, and we promote children to eat with their hands because it is said in our Puranas as well that the sensory things works for your digestive juices. मैम ऐसे ही कहा जाए तो स्पून एंड फॉर्क हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे देश में कोई आया था, वो अपनी संस्कृति लेके आ गया और हमारे मन में उनकी संस्कृति अटक गई। तो ये हमारा इजाद किया हुआ नहीं है, हमारे पास तो भगवान ने हाथ ही दिए हैं, उंगलियां दी हैं उसी का परसेप्शन लेने के लिए, टैक्टाइल सेंसेशन लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए। तो अगर कोई बोलता है कि अरे तुम हाथ से कैसे खाते हो, तो हम तो ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही है भैया। हम तो ऐसे ही। सर टीचर्स कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं एक चाइल्ड कहीं ना कहीं इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है क्लासरूम में, तो आप टीचर्स को कैसे एड्रेस करेंगे कि भाई हम इस चीज़ को कैसे, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट इनटू साइकोलॉजी, सो हाउ डू वी डील विद दैट? मैम मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि इफ अ स्टूडेंट फील्स इमोशनली और मेंटली चैलेंज्ड इनसाइड अ क्लास, सबसे पहले तो टीचर को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए रादर, कि जब वो सारे बच्चों को एड्रेस कर रहा है तो ही और शी शुड बी न्यूट्रल। वो स्पेशल ट्रीटमेंट अगर उस बच्चे को दे रहा है तो उस बच्चे को ना चाहते हुए भी सिंगल आउट कर रहा है।
सो सबसे लोगों को लगता है कि अरे ये बच्चे को थोड़ा ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। वो बच्चे को आप जितना नॉर्मल करके ट्रीट करोगे, आप पहले तो उतना नॉर्मल करके सबके सामने ट्रीट करिए। पर इफ यू आइडेंटिफाई सच ए पर्सन, यू आस्क हिम और हर टू मीट यू पर्सनली अवे फ्रॉम द क्लास। इंफॉर्मेशन ना हो क्लास को तो ही अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चा सिंगल आउट हो, क्योंकि मैडम दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू द स्टूडेंट, और दैट स्टूडेंट विल फील कि यार मैंने मैम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सबको पता चल गया, अब सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे। क्योंकि मैम ये लोगों को, ये वो लोग होते हैं कि जिनको शायद जिस तरह से इमोशनल वेंटिंग आउट मिलना चाहिए थी, वेंटिंग आउट मिलना चाहिए था, नहीं मिलता, या मिलता भी है तो दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली मैनेज इट, कंट्रोल इट। उनको स्पेशल गाइडेंस लगता है, उनको स्पेशल जिसको कहते हैं कि ट्रीटमेंट लगती है। मैं ट्रीटमेंट तक नहीं जाऊंगा, बट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एज टीचर्स कि हमको उन लेवल के बच्चों को एट कंफर्ट कैसे रखना है, एट ईज कैसे रखना है, हाउ टू नॉट मेक देम फील सिंगल्ड आउट, बिकॉज इस लेवल पे हम इतना ही कर पाएंगे। और जब हम उनसे पर्सनली बात करेंगे, देन वी कैन एक्चुअली प्रोब इनटू कि what those people think about others, what people think about themselves first, क्योंकि जो हम खुद के बारे में सोचते हैं वही हम हर किसी में दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू थिंक कि ये बच्चा अपने बारे में, खुद के बारे में कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको किस तरह से हम उसके थॉट को, उसके परसेप्शन को हम थोड़ा सा असर्टिव बना सकते हैं। इफ यू आर वरीड अबाउट something which is not so important inside the mind of that child, then you must ask, or you can actually persuade or coax or convince that child कि बेटा बच्चे इस चीज के ऊपर आप इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ये चीज तो मायने ही नहीं रखती है, आपकी ये चीज छोड़ो, आप ये चीज देखो, आप इस चीज में कितना अच्छा कर रहे हो। तो नेचुरली इफ यू फाइंड समथिंग गुड और समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन द माइंड ऑफ सच अ चाइल्ड, तो you can ask him or her to divert his whole attention to the thing which is good in The strength that of the person, child. the strength of the child. देखिए मैम, टीम डेलीगेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम जब टीम बनाते हैं, जैसे इंडिया क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए, आपने कभी सचिन तेंदुलकर को ओपनिंग बॉलिंग करते नहीं देखी, या कभी आपने जहीर खान को ओपनिंग बैटिंग करते नहीं देखा। देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर प्लेस्ड वेयर दे आर। ओपनिंग बैटिंग करना है तो तेंदुलकर जी ही करेंगे, क्योंकि ही इज गुड एट प्लेसिंग गुड शॉट्स। ओपनिंग करना है तो पाकिस्तान में वसीम अकरम ही बॉलिंग डालेगा, ओपनिंग वकार यूनिस ही डालेगा, क्योंकि उसको पता है बॉल कैसे डालनी है। दोज आर टू डिफरेंट रोल्स। दे हैव आइडेंटिफाइड देयर स्ट्रेंथ्स एंड दे नो हाउ टू प्ले विद दोज स्ट्रेंथ्स। इट डजंट मैटर वसीम अकरम को बैटिंग ना आए, भाई तुम्हारा काम ही नहीं बैटिंग करने का। तो स्टूडेंट्स को भी हमको इसी तरह से हैंडल करना चाहिए। यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। हर किसी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है मैडम, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी में कुछ पॉजिटिव। Every individual has a agree with blessing. it कि every individual is born with some or the other talent and a good thing that we just need to identify. बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज एन ऑथर नेम्ड कैल न्यूपोर्ट, शायद आपने पढ़ा होगा। मैं उसकी दो बुक्स मेरे पास है, एक है डीप वर्क और एक है सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इट्स अ टाइटल, और उस टाइटल में उसने दो तरह की ना माइंडसेट की बात की है। एक उसने कहा है फैशन माइंडसेट, एक उसने कहा है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। इन दो माइंडसेट्स के पहले उसने एक सेंटेंस बोला, जस्ट पन्ना यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से चालू हुई माइंडसेट्स। ही सेड दैट अनलेस यू डू और अनलेस यू थ्रो योरसेल्फ ऑनटू 100 डिफरेंट थिंग्स, you won't find that single thing at which you are good at. It can be a matter of coincidence कि आपने 5 चीजें करी और आपको एक चीज मिल गई। It can be a matter कि आपने 10 चीजें करी, आपको चीज नहीं मिली। Never stop trying new things. Never stop trying something जिसने कुछ नहीं किया होगा वो भी आप ट्राई कर सकते हो। हो सकते हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट बन के आगे निकलो। So there can be the development of a strength in something which is done routinely or which is not done so routinely. कोई चीज ऐसे भी हो सकती है कि किसी ने ट्राई ना की और आपने ट्राई की और आपको बहुत अच्छे से जम गई। We never know what will You're the click best for us. example for it. After being medical practitioner, again, lot of PhDs, then 3 PhDs, Yeah. and after that, guitar, Yeah. and then singing, then now swimming. So, lot of things you have explored, and that is the best part that you present, a live example. Thank That you so much. because these days, what parents think is that if somebody has to get into academics, he cannot explore the other things. That's a faulty thinking. And not a faulty thinking, that's a faulty mindset, I say. Because academics is a whole school of thoughts.
because academics comprises of planning, academics comprises of personnel, academic जैसे हम कोई भी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, हमको एचआर के बारे में भी सोचना है, हमको फाइनेंस के बारे में सोचना है, हमको टीचिंग स्टाफ के बारे में सोचना है, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में सोचना है, डेलीगेशन के बारे में सोचना है, एंड डेलीगेशन में अगेन टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपने कहा, एंड अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि हम सचिन तेंदुलकर को ओपनिंग बॉलिंग नहीं करेंगे, अगेन टीम डेलीगेशन में भी हमको स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है। यार आप एचआर में अच्छे हो, आप एचआर में जाओ, आप फाइनेंस में अच्छे हो, फाइनेंस में जाओ, यू आर गुड एट टीचिंग लेक्चर्स, गो इनटू एकेडमिक्स, यू आर गुड एट ट्रीटिंग पेशेंट्स, गो ऑन द हॉस्पिटल साइड। तो ऐसा मैम जब हम स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके किसी को टास्क डेलीगेट करते हैं तो उस इंसान के अंदर में ओनरशिप आती है। आई हैव बीन चोजन फॉर दिस टास्क बिकॉज आई एम गुड एट इट। ये सेम एलिमेंट हम उस बच्चे के मन में लाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को सकुचाया हुआ, सिंगल आउट, थ्रेटेंड महसूस कर रहा है कि बॉस तेरे में ये चीज ऐसी है जो बाकियों में नहीं है। एंड दिस स्मॉल स्पार्क विल टेक दैट चाइल्ड टू unfathomed depths or unfathomed or unreachable heights, I'd say. So you're suggesting that every parent should give wings to the children to fly and explore different horizons, right? Sir, on the last note, the last question, what 3 simple habits can every child follow daily for good mental health? 3 different habits, okay. मैंने प्रेजेंटेशन में भी बोला था, एक तो अपने आप से बात करने की आदत है, नॉट इन पब्लिक बट मे बी व्हेन वी आर टेकिंग बाथ और व्हेन वी आर ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग, हमारे साथ ऑब्वियसली कोई नहीं हो तो बाथरूम में। तो अभी तो कैसे में बच्चे छोटे में कई बार बच्चों को हमको ही ब्रश कराना पड़ता है, बच्चे कभी कभी खुद भी कर लेते हैं, पापा आज मैंने कर ली ब्रश। तो व्हेन दे ग्रो उनको ऐसा बोलना चाहिए कि मतलब बहुत एक मैच्योर थॉट है, एक मैच्योर सेंटिमेंट है कि बेटा we are there with you up to a particular period of time. After that, आप हो जिसको आपके साथ में हमेशा के लिए रहना है। वो थोड़ा बहुत मेरे अपने लेवल के थॉट्स हैं, उनको इतने जल्दी नहीं बता सकते, बट एक हमेशा से हैबिट मैंने काफी लेट डेवलप की, टॉकिंग विद योरसेल्फ इन द मिरर, बिकॉज देयर इज नो फिल्टर एंड देयर इज नो जजमेंट। जस्ट एज वी हैव टू फोकस ऑन डूइंग बेटर on the task we did yesterday, just like that हम खुद से ही संवाद साधेंगे कि मैं कल ऐसा था, आज मुझे ये चीज परेशान नहीं कर रही है जितनी मुझे कल कर रही थी। एंड टॉकिंग टू आवरसेल्व्स मैम क्लियर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट दिस टेक्निक कैन डू। यू नो, यू कैन मेक स्ट्रैटेजीज, यू कैन मेक प्लान्स बाय टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू कैन इवन क्वेश्चन योरसेल्फ। आप अपनी पर्सनालिटी को जिस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो ना बाय टॉकिंग टू योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन। सर, बच्चों का आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैम, टाइम मैनेजमेंट। वी डोंट हैव टाइम ओनली। बेचारों के पास मैम इतना ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है। Seriously, I mean, I really believe that too much of the content, study time is less, and expectations are too high, and the little child is really juggling, and there's a lot of things on his plate to accomplish. And then we expect them to stay healthy mentally, physically, lot of things. So, you know, right now as a mother to 2 beautiful daughters, as well as a principal for 23 years for so many children, I feel that, you know, we should manage things for them. You know, what is important, prioritizing things is more important. Yeah, of course, I mean, doing everything is important, but prioritizing is what I think that every parent should understand, that for everything we have a certain time period. Absolutely. I mean, this is not only the year that I have to finish everything up. So this is what I personally believe that. Perfect. Now, first habit was talking to oneself, and second habit, which I don't follow this habit, but I have read that people have had following this habit since long. My elder sister tells me a lot about it. वो कहती है कि गौरव तू अपनी इमोशंस लिखना चालू कर। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा, if you learn how to write your thoughts out, journaling, yes, जो तू कहते हैं इमोशनल जर्नल, इमोशनल डायरी, आप या तो आपके पास मतलब मैम कैसा है ना, if you talk to yourself, it's a verbal way of communication. If you write, it's a written form of communication.
आप बोल के याद रख सकते हैं, भूल सकते हैं, पर अगर आप लिखी हुई चीज को या तो मिटाएं या जलाएं नहीं, वो चीज रहेगी आपके साथ। आपकी इमोशनल जर्नलिंग जो है वो आपका मानसिक सफर बताती है। आपने अगर आज कुछ चीज सोची और लिख दी, आज के 5 साल बाद आप पढ़ेंगे उसको, देन यू विल रियलाइज कि हाउ इमेच्योर यू वर 5 years back and how mature you are now. That's a sense of achievement. This is something very unique to emotional journaling, and that is, you yourself have written it at some point of time in the past, and you are reading, you have made it through those 5 years, 10 years, and then you are reading it back again. Then you realize that, oh, मैं कितना दूर आ गया है। Then you feel that sense of achievement कि यार मैं अपने आप को कैसा समझता था और कितना गलत समझता था, मुझ में कितनी समझ की कमी थी, और आज मैं इससे तो ज्यादा समझता हूँ जो मैं 10 साल पहले था। ट्रू ट्रू। और सर मैंने देखा है काफी बच्चे जर्नलिंग करते भी हैं आजकल, एंड व्हेनेवर दे राइट दे वेंट इट इन अ प्रॉपर वे एंड देन दे फॉरगेट आल्सो। दैट्स द पार्ट, बिकॉज़ मैम वेंटिंग आउट का पॉइंट ही यही है कि उस चीज को भूल जाओ। क्योंकि मैम जब तक ना अंदर जगह नहीं बनेगी किसी पुरानी चीज को हटा के, आप नई चीज डाल नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं अगर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नए टाइप के, नए दौर के एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करें, नई तरह की कॉम्पिटेंसीज को मास्टर करें, तो इमोशनल हैंडलिंग, इमोशनल जर्नलिंग विल बी अ पॉजिटिव अफर्मेटिव फैक्टर, बिकॉज इट विल हेल्प इन कचरा निकालने में मदद करता है। रिसाइकल बिन को भी खाली करना पड़ता है। Very well said, sir. बिल्कुल। So it was wonderful talking to you, sir, and we are very grateful that you accepted our request. Thank you. Likewise, I am also humble. Thank you. Thank you so much. So today, Dr. Gaurav Mishra, sir, he gave us a nice few key takeaways, as if that every parent should be a very good listener, effective listener. Second, parents should be patient, understanding, and they should listen to the child without being judgmental. Third, we should take care of the nutrition of our children. जितना सात्विक खाना हम खाएंगे उतनी बेहतर हमारी सोच बनेगी। ये आज एक जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज एक टेक अवे हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। हमने उसके बाद बात की कि टीचर्स जो क्लास में कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन बच्चा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, और क्लास में नहीं बट हम अलग से जहाँ नोटिस में ना आए बच्चा, उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं और उसको वेंट करने के लिए एक जगह हम दे सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने रखा सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, और ऐसे कई सेशंस हम आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ पे एज स्टूडेंट्स हम लोग नर्चर करेंगे मिलकर, being educationists, being parents, being teachers, we will all come on a single platform to nurture our children and make them responsible citizens and good human beings. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.